मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके यूटी सेकंड ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको दोबारा से एक बार आपका हाफ ईयरली का कोर्स रिवाइज करा रही हूँ। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9, 10, 11 आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 9 टाइप्स ऑफ हाउसेज एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। जिस बच्चे का नहीं हुआ है वो कर लें। देखिए, इसमें हमने हाउसेज के टाइप्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या कच्चा हाउस के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा हाउस कौन सा होता है? कच्चा हाउस बैम्बू, वुड, लीव्स, मड और स्ट्रो से बना हुआ होता है। ये जिन चीज़ों से बनता है वो चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। ये हाउसेज ज़्यादातर गांव में होते हैं, ठीक है। और कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस के अलग अलग काइंड्स होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कच्चे हाउस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं? हट, वुडन हाउस एंड हाउस बोट, ये सब टेम्परेरी होते हैं। स्टिल हाउस, कारवा, इग्लू एंड इसके बाद हमारा पक्का हाउस आता है। पक्का हाउस में हमने फ्लैट के बारे में पढ़ा था, बंगलोज के बारे में पढ़ा था और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने आपकी बुक एक्सरसाइज कराई थी। बुक एक्सरसाइज जिसकी बच्चे की नहीं फिल हुई है मैं फिर से शो कर रही हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट इज अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड आंसर इज thieves. Second is the people in villages mostly live in. Answer is huts. Third is a wooden house is made up of. Answer is wood. Fourth is an igloo is a house made up of. Answer is snow. Fifth is the flat can be turned as an. Answer is apartment. Sixth is the area near the North Pole is completely covered with. Answer is snow. Seventh is multi-storied buildings are also known as. Answer is skyscrapers. Okay, ये आपके टिक द करेक्ट हैं। इसके बाद आपके आते हैं फिलअप्स। फिलअप्स भी देख लीजिए, जिसके नहीं हुए हैं अपनी नोटबुक में बुक में फिल कर लीजिएगा और जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स इन आवर neighborhood. Second is people of different region build. Answer is houses according to their requirement. Third is we can't think about our protection from the wild animal and nature climates in a hut. Fourth is karva is a house on wheel which can be taken from one place to another place. Fifth is a pakka house is built with still considered bricks. Answer is wood and metal. Six is many multi-storied buildings can be seen in big cities. Okay, ये आपकी बुक एक्सरसाइज है। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। ये जिसके नहीं हुए हैं वो अपनी नोटबुक में कर लें। ओके, फर्स्ट इज देखिए, पहले आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज वेयर डू वी लिव इन? आंसर इज our house is a place where we live in. Second is what does our house give? Answer is our house give us stable and comfortable life. Third is what is a floating house? A houseboat is a floating house. Fourth is what is an apartment? Answer is a flat can be termed as apartment. Fifth is which house is grand and attractive? Answer is a bungalow is grand and attractive. Answer the following in brief. What is the difference between a kacha house and pakka house? Give two examples. Is kacha house is made up of bamboo, wood, leaves, mud, straw, etc. These are temporary house. Example wooden house and hut. Okay, pakka house is built with steel, concrete, bricks, wood and metal. These are permanent house. Example flats and bungalow. Okay, second question is who live in temporary or kacha house? Why? Answer is kacha house and temporary house because these materials and are cheap. Question third, name any two movable houses. Example them. Answer is karva is a temporary house. It is a house on wheels which can be taken from the place of another. They keep moving from one place to another place in their movable houses. Okay, इसके बाद
houseboat. A houseboat is a floating house. Those houses are the attraction of the tourists. Fourth question is, who are Eskimos? People who live in igloos are called Eskimos. यहाँ आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है. ये जिस बच्चे के नहीं हुए हैं आप कर लीजिएगा. और आपका जो होमवर्क है, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने मुझे एक्टिविटी नहीं दी है, मैंने आप लोगों को एक्टिविटी सेंड की थी, वो बच्चे मुझे सभी बच्चे एक्टिविटी सेंड करेंगे. पता है आप लोगों को कि एक्टिविटी आपकी मार्क्स सेट होते हैं एक्टिविटी के भी. ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे एक्टिविटी बना के भेजेंगे. जो भी एक्टिविटी मैंने आपको दी है आप देख चुके हैं, वैसे भी स्कूल ऐप पे पड़ी होगी जब भी मैंने सेंड किया, आप उसको देखिएगा. और जिस बच्चे की नोटबुक चेक नहीं है वो मुझे नोटबुक चेक करने के लिए भेजेंगे. चैप्टर 9, 10, 11 जो भी वर्क आपका चेक नहीं है चेक करने के लिए भेजेंगे. ओके, और लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दीजिए. जूम क्लास में मैं आपसे सारा सुनूंगी. ओके, गुड डे.